Good morning, students. I'm RK. Today I am going to teach you an important poem of English literature on his blindness, composed by John Milton, a great English poet who was born on 9 December 1608 at Bread Street in London. Due to his attractive face, he was called the Lady at Christ College, Cambridge. He is very famous for his epic poem Paradise Lost, which contains 12 books. He was a Puritan. He died on 8 November 1674 at Burnhill in London. So, student, now I shall tell you about this poem. On his blindness is a sonnet. So, student, first of all, we shall know what is sonnet. Sonnet is a short poem of 14 lines. Sonnet 14 लाइनों की एक संक्षिप्त कविता होती है. So, student, we should know that there are two kinds of sonnet: English sonnet and Italian sonnet. English sonnet is also known as Shakespearean sonnet, and Italian sonnet is also known as Miltonic sonnet. So, On His Blindness is a Miltonic sonnet, and this is his personal sonnet. In Italian sonnet, the sonnet is divided into two parts. The first part means first 8 line is called octave, and the last part means last 6 line uh, is the last 6 line is called octave. And, the rhyme scheme of the sonnet is A B B A A B B A C D E and C D E, and the meter is iambic pentameter. So, in the first part of the sonnet, the poet John Milton complains to the god against the injustice done to him, and in the last part of the sonnet, means in sestet, he accepts the supremacy of God. So, student, this was about the poem and sonnet. Now, I shall tell you the central idea of this poem. In his personal sonnet on his blindness, John Milton expresses his deep shock on his premature blindness, and he is deeply distressed to think due to his premature blindness he cannot make the proper use of his poetic talent, and God would punish him for not making the proper use of his poetic talent. But his patient soon consoles him, saying that God neither needs the service of human being nor does he wants back his own gift from them. And on the other hand, he says that those who stand quietly with their palm joined and wait for their chance to serve God in the best way. So, student, this was the central idea of this poem. Now, I shall teach you the poem with the help of the text. So, student, let's read this poem. When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ how व्हेन आई कंसीडर जब मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कितनी जल्दी कितनी शीघ्र मेरी नेत्र ज्योति मेरी आंखों की रोशनी चली गई है. एर एर मीन्स बिफोर हाफ माई डेज, मेरी आधी आयु पूरी होने से पहले ही कितनी जल्दी मेरी आंखों की रोशनी चली गई जब मैं ये सोचता हूँ. So student, you should know one thing, that John Milton became blind in 1652 at the age of 44. While he hoped to live long, जॉन मिल्टन 44 साल की उम्र में ही 1652 में वो अंधा हो गया था, और जब उसने पोएम लिखी वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था. सो कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि कितनी जल्दी कितनी शीघ्र मेरी आंखों की रोशनी चली गई है मेरी आधी आयु पूरी होने से पहले ही, एंड दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये संसार मेरे लिए डार्क हो गया है, एंड वाइड, और विस्तृत हो गया है, बड़ा हो गया है. एंड दैट वन टैलेंट, और वो एकमात्र टैलेंट मीन्स द पावर ऑफ कंपोजिंग ग्रेट पोइट्री, द कैपेसिटी ऑफ कंपोजिंग ग्रेट पोइट्री, और वो एकमात्र टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु छिपा लेगी, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे मृत्यु छिपा लेगी. लॉज मीन्स वो पड़ी रहेगी विद मी मेरे पास, यूजलेस वो बेकार ही पड़ी रहेगी. दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा का मोर बेंट अधिक झुकाव है, टू सर्व मैं सेवा करूँ, देयर विद इससे माई मेकर अपने बनाने वाले की सेवा करूँ, एंड प्रेजेंट प्रस्तुत करूँ, माई ट्रू अकाउंट अपना सच्चा विवरण प्रस्तुत करूँ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड मीन्स
अब यहाँ पोएट के कहने का मतलब है कि यद्यपि मेरी आत्मा का पूरा झुकाव है, मेरी आत्मा ये चाहती है कि मैं अपने इस पोएटिक टैलेंट से ईश्वर की प्रशंसा में काव्य लिखूं और हर दिन का अपना पूरा अकाउंट प्रस्तुत करूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मृत्यु के बाद ईश्वर के सामने पहुंचूं और वो मुझसे पूछे कि मैंने तुम्हें पोएट्री लिखने की क्षमता टैलेंट दिया था, तुमने उसका क्या किया। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे चाइड ना करे, मुझे रिव्यू ना करे, मुझे डांटे फटकारे ना। नेक्स्ट, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। अब यहाँ कहता है, पोएट कहता है आई फाउंडली आस्क, मैं, फाउंडली मीन्स होता है फुलिशली, मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से ये प्रश्न करता हूँ। डथ मीन्स क्या, गॉड एग्जैक्ट मीन्स मांग करता है, एक्सपेक्ट करता है, डे लेबर दिन भर किए जाने वाले श्रम की मांग करता है, लाइट डिनाइट किसी की आंखों की रोशनी को छीन करके। क्या भगवान किसी से ऐसी उम्मीद करता है? बट पेशेंस मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, सून रिप्लाई शीघ्र ही उत्तर देता है। कहता है कि गॉड डथ नॉट नीड, कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ईदर मैंस वर्क, न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है। देखो, गॉड डथ नॉट नीड, अभी निगेटिव है तो यहाँ ईदर हो गया नीदर, मतलब ईश्वर को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, नॉर हिज ओन गिफ्ट, ना उसे अपने ही दिए हुए गिफ्ट वापस चाहिए। हुम इज, जो बेस्ट सबसे अच्छे से, बियर सहन कर लेते हैं, हिज माइल्ड योग उसके साधारण से कष्टों को, दे सर्व हिम वो उसकी सेवा करते हैं, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी सेवा करते हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस स्टैंजा द पोएट मीन्स टू से दैट ही वांटेड टू सर्व गॉड, he became blind and he could not serve God. He said to himself, will God expect me to work which can be done in the daylight when he has taken my eyesight? He feels that this question is foolish, and his patience consoles him so that he may not complain. And his patience says to him that God does not need the service of human being, nor does he want back his own gift, ना उसे अपनी दी हुई गिफ्ट वापस चाहिए। ठीक है, दोज हु बियर हिज माइल्ड सफरिंग, माइल्ड हार्डशिप विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, दे सर्व हिम इन द बेस्ट वे, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। नेक्स्ट, हिज स्टेट उसकी स्थिति इज किंगली, राजा के जैसी है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के जैसी है। थाउजेंड्स हजारों, एट हिज बीडिंग उसकी आज्ञा पर, बीडिंग मीन्स कमांड, स्पीड मीन्स दौड़ने लगते हैं, स्पीड मीन्स दौड़ने लगना, मतलब रन अबाउट करना। एंड पोस्ट मीन्स स्पीड, तेजी से। लैंड एंड ओशियन, धरती और समुद्र के ऊपर, विदाउट रेस्ट, बिना रुके हुए। दे आल्सो सर्व, वे भी उसकी उतनी अच्छी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, प्रतीक्षा करते हैं। स्टूडेंट्स फिर से देखेंगे, हिज स्टेट उसकी स्थिति, इज किंगली बिल्कुल राजा के जैसी है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग, उसकी आज्ञा पर हजारों देवदूत और परियां दौड़ने लगती हैं। एंड स्पीड, तेजी से, लैंड के ऊपर और ओशियन के ऊपर, बिना रुके हुए, मतलब जब तक वे उसके आदेश को, ऑर्डर को पूरा नहीं कर देते तब तक वो रुकते नहीं हैं। फिर लास्ट में उसने ये भी बताया है कि दे आल्सो सर्व, वे भी उसकी उतनी अच्छी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब ईश्वर उन्हें अपनी सेवा का मौका दे, तो वे भी उसके उतनी ही अच्छे सेवक होते हैं जितना कि वो, जो कि उस समय ईश्वर की सेवा में लगे हुए होते हैं। So student, we have read the text. Now, in this last stanza, the poet means to the patience says to John Milton that God is like a king. He has a very large number of servants. When he commands to do something, thousands of angels and fairies begin to run over the land and ocean, and they do not stop until they carry out his command. And those who are ready but get no chance are also his best servant. And God recognizes them too. And he feels that everyone who is ready to carry out his command has really served him. So student, this was the poem, and we have completed this poem in this way. Now I shall tell you two important explanations which are often asked in the examination. First one, doth God. This stanza is very important. And the his state is kingly.
This is very important because many time this stanza has been asked many time in the examinations. And at last, I shall tell you two important figure of speech used in this poem. First of all, his mild yoke. His mild yoke. This line. In this line, metaphor has been used. We know that metaphor is an implied simile. I have already told you in my first video, metaphor एक implied simile है. Means in metaphor a comparison is made between two different objects, but the word of comparison so like as are not used at all. So here metaphor has been used. And the next one, personification. But patience to prevent that murmur soon replies. Here in this line, personification has been used. Personification means होता है मानवीकरण. मीन्स पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं और भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे उसमें जीवन हो. मीन्स इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ और इंटेलिजेंस. सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम. और अगर तुम्हें ये पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करो मैक्सिमम लोगों के पास या स्टूडेंट्स के पास जो भी आपके परिचित में हो, पहचान में हो, ताकि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और वो पढ़ सकें. और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा. और एक बात और इम्पोर्टेंट, अगर इसमें मैंने जो कुछ तुम्हें पढ़ाया है इस पोएम में, अगर इसकी कोई चीज़ तुम्हें समझ नहीं आती तो मुझे अपना रिएक्शन ज़रूर दिया करो और उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.